اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students, welcome to our new session. Today our topic is qualities of a good paragraph. We will see what are the salient features of a good paragraph in this discussion of today. Dear students, first and foremost quality of a good paragraph is its unity, singleness or oneness of purpose, that is to say, all the detailed sentences clearly point to or support the topic sentence given in the beginning of the paragraph. Then comes coherence. All the sentences and ideas in the paragraph connect and flow smoothly together to make clear and logical points about the topic given in the opening sentence. Unity means the overall oneness of the paragraph pertaining to the main idea of the paragraph, whereas coherence means a connection, interlinkage between the ideas of the paragraph, between the sentences of the paragraph, the interlinkage that is to be found there. بیٹے یونٹی سے مراد اوورال جو اس کا امپریشن ہے اس کی یونٹی ہے، وننس ہے، پورے پیراگراف کی ایک ہونے کا مجموعی تاثر ابھرنا، اس کو ہم یونٹی کہتے ہیں. جبکہ کوہیرنس سے مراد کسی اچھے پیراگراف کا آپس میں جملوں کا جو ہے ربط جسے کہا جاتا ہے، انٹر کنیکٹیوٹی بٹوین the sentences, that is called coherence. Dear students, then the purpose of the paragraph is also a very important ingredient. The paragraph is always written to achieve a purpose. Without a purpose, it is aimless loitering. So we have to set a goal, a target for our paragraph first of all. Every word, every sentence, and every point in a paragraph should have a role to play in fulfilling the purpose of the paragraph. Therefore, whatever is written in the paragraph has got to explain, has got to take the relationship between them towards the larger purpose in view. بیٹے یہ جو مقصد ہوتا ہے یہ کسی پیراگراف کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے. اگر کسی مقصد کے بغیر کوئی پیراگراف ہم لکھیں گے تو وہ ایک ڈائریکشن لیس، ایم لیس رائٹنگ ہوگی جو تاثر نہیں چھوڑے گی، جو تاثر ہمیں درکار ہے. تو یہاں لکھا جانے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ مقصد کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے آپ پیراگراف تخلیق کر رہے ہیں. Dear students, then another quality should be there, and this is the quality of forcefulness, that is emphasis. The most important points in the paragraph should be clearly emphasized so as to help the reader focus on the main idea, or to make clear the main idea, or to clarify the main idea, or to super highlight the main idea. بیٹے پیراگراف کے اندر جو ہے وہ فورس کو استعمال کرنا، ایمفیسس کو، ایمفیٹک ہونا جسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں مختلف جگہوں پر، یہ ایمفیٹکسزم جو ہے، یہ ایمفیسس جو ہے، یہ جو ہے وہ کچھ خاص جملے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو میجر پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور پڑھنے والا جو ہے اسے ہمارے مین آئیڈیا سے جو ہے وہ فوری واقفیت ہو جائے. یہ جو ہوتے ہیں یہ سپر ہائی لائٹڈ سینٹینسز ہوتے ہیں جو ایمفیسس کو، زور کو، فورس کو، وگر کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں. Dear students, then there is another quality that is called completeness of the paragraph. Completeness means comprehensiveness. Completeness refers to providing adequate information to make a paragraph well developed. If all sentences clearly and sufficiently support the main idea,
then your paragraph is complete. Complete in meaning, complete in estimation, complete in overall understanding. बेटे ये जो completeness होती है, sense of completeness, that is to say, इसका मतलब होता है कि आपका पैराग्राफ जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव है और उसमें जो मुनासिब मालूमात दरकार हैं उनको पेश कर दिया गया है और पैराग्राफ को सही तरह से जो है वो उसको ग्रोथ दी गई है, उसको डेवलप किया गया है, ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से किया गया है। तो एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, कॉम्प्रीहेंसिवनेस जो है उससे जो है वो उभर कर सामने आती है। डियर स्टूडेंट्स, देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ the length of a paragraph. What should be the length of a paragraph? Surely the length of a paragraph mainly consists of and is based on the complexity of the main idea you are developing, and the length of therefore the paragraphs vary from idea to idea, from purpose to purpose. Mostly you may say that a balanced or a moderate type of paragraph consists of about 100 words, or in other sense 7 to 10 sentences approximately, but it might be somewhat different or deviate from that. बेटे ये जो लेंथ है पैराग्राफ की, ये आपका जो मकसद है पैराग्राफ लिखने का उसके हिसाब से वेरी करती है। कहीं तो सिर्फ भाई 4-5 जुमलों से ही पैराग्राफ अच्छा तक लिख पा जाता है, कहीं आप 7, 8, 10 जुमलों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जैसे जैसे आपका जो मेन आइडिया है उसको आप अरेंज करते हैं, डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अपने मकसद का तयन करते हैं, तो ये उसके हिसाब से फिर जो है वो इसकी लेंथ का जो है वो तयन होता है कि ये पैराग्राफ की लेंथ जो है वो इतनी होना चाहिए। Dear students, planning is very important while writing any kind of writing. The paragraph, the essay, any article, any treatise, any short story or a story, whatever the type of writing you are going to write needs a good planning. A good planning leads to a good writing. तो बेटे मनसूबाबंदी पहले करना पड़ती है पर इसे हम प्री राइटिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग भी शामिल होती है, प्री अरेंजिंग द मटेरियल भी है और टेकिंग हिंट्स जो हैं उनको, ये बड़ी सारी इसमें एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जो हम राइटिंग स्किल्स में सीख चुके हैं। ये बेटे जो है चंद अहम नकात इसके, अगरचे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन चंद अहम नकात जो हैं उनका यहाँ ज़िक्र किया गया है। जैसे पहले नंबर पर हमें टॉपिक का फ़ैसला करना होता है कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इन दिस पैराग्राफ, और मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द टॉपिक गिवन, या जो आपको किसी ने कहा है कि इस मौजू पर लिखें उसको पहले अच्छी तरह समझ लें तहरीर करने से पहले, शुरू करने से पहले। देन योरसेल्फ प्रिपेयर अ टॉपिक सेंटेंस, देन लिस्ट all the points related to the main idea or the central idea to develop. Then check your final list of sentences and cross out irrelevant sentences which are not needed or unnecessary parts of your points. Arrange the points in a logical or chronological order. Logical order means उनको अकली एतबार से तमाम जुमलों को तरतीब देना, अच्छी तरह डेवलप करना, अपनी सोच के अंदर कनेक्टिविटी लाना। ड्राफ्ट योर पैराग्राफ, नो राइट इट डाउन, पुट द आइडियाज़ इनटू सेंटेंसेस लिंक्ड विद कोहेसिव डिवाइसेस। वो जो हमने ट्रांजिशनल फ्रेजेस का जिक्र किया, आगे भी उसकी तशरीह आएगी मज़ीद, उनका इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ के अंदर लिंकेज जुमलों के अंदर फराहम करते हुए अपने पैराग्राफ को लिखें। रीड थ्रू एंड चेक योर वर्क, इसको हम रिवीजन कहते हैं, रिव्यू कहते हैं। आप उसको रिवाइज़ करेंगे, इसमें एडिटिंग भी होगी, अपने स्पेलिंग्स चेक करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे, फिर जो है वो आप अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है पैराग्राफ का उसको तैयार करेंगे गलतियाँ दुरुस्त करने के बाद। इफ़ देयर आर एनी एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स, मटेरियल को दुरुस्त रखेंगे, तरतीब यानी उसके अरेंजमेंट को चेक करेंगे,
ग्रामर और स्पेलिंग वगैरह को चेक करेंगे, उसकी सिस्टमेटिक जो है वो चेकिंग होगी, और फिर इस रिवीजन के बाद आप अपना फाइनल ड्राफ्ट यानी पैराग्राफ को दोबारा नीट करके जो है लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि यू हैव टू राइट इट ट्वाइस और थ्राइस। गुड पैराग्राफ शुड बी रिटन ट्वाइस और थ्राइस। फर्स्ट यू प्रिपेयर द मेन पॉइंट्स रफ ड्राफ्ट की शक्ल में, देन यू अरेंज दैम, then you write them in a final shape. Dear students, there are so many techniques, strategies and plans and tools and devices to create a linkage, coherence that is in your paragraph. However, some of these techniques are given below. Repeating keywords or phrases, जो अहम अल्फाज हैं या फ्रेजेस हैं आपकी, उनको दोहराया जाता है जुमलों में मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े तरीके से, सलीके से, कि ये एहसास भी ना हो कि आपने रिपीट कर रहे हैं आप लफ्ज़ों को। बीइंग कंसिस्टेंट इन व्यू ऑफ इन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ब आपके दुरुस्त हों, नंबर दुरुस्त हों, तो कंसिस्टेंसी इन थॉट, कंसिस्टेंसी इन स्टाइल ऑफ राइटिंग, कंसिस्टेंसी इन योर एक्सप्रेशन, दैट इज़ वर्ब को जो है वो हम एक्सप्रेशन कहेंगे। तो बेटे ये कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ज़रूरी होती है कि आपका नुक्ता नज़र कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डिविएशन उसमें नहीं आनी चाहिए। तो फिर इसके बाद जो है कभी कभार पैरेलल स्ट्रक्चर्स भी जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप प्रेजेंट टेंस में कोई जुमले तख्लीक कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई एक आध जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप लिखते जा रहे हैं सारे जुमले, तो यकदम कोई एक आध जुमला जो है वो कॉन्टीन्यूस टेंस का डालें, परफेक्ट टेंस का डालें। तो ये इस तरह से एक पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होगा, जो आपकी तहरीर को और ज़्यादा जो है वो मजबूत और एम्फेटिक बनाएगा। Dear students, the coherence or the flow of writing can be achieved through the use of some other devices. कोहेरेंस जो है बेटे हम और भी बहुत से टेक्निक से, टूल्स से, डिवाइसेस से हासिल कर सकते हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकल आर्डर से जुमलों को रखना, तरतीब जिसे हम तारीख़ी तरतीब कहते हैं, तारीख़ के एतबार से दी गई तरतीब। फिर स्पेशल आर्डर, अपना वक्त के हिसाब से उनको टाइम के हिसाब से जो है वो तरतीब देना। फिर एम्फेटिक आर्डर कि भाई कौन सा जुमला ज़्यादा ज़ोरदार है उसे पहले लेकर आना, और कौन सा कम ज़ोरदार है, लेसर इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है उसे बाद में लेकर आना। फिर सीक्वेंशियल और प्रोसीजरल ऑर्डर, फिर हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनकी तरतीब जो है लॉजिकल, जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो ठीक है, प्रोसीजर के एतबार से उनके अंदर नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का भी लिहाज रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इट क्रिएट्स कोहेरेंस इन द पैराग्राफ। Dear students, we have time and again discussed the transitional words and phrases here and there. They provide connections, as you know, in between your sentences. आपके जुमलों के अंदर जो रब्त है, तसलसल है, ख्यालात का, उस कनेक्टिविटी का, इंटरकनेक्टिविटी का, ये अल्फाज जो है वो उसको शो करते हैं। एक जगह हमने चार्ट की शक्ल में चंद एक जो थे ये ट्रांजिशनल वर्ड्स नोट किए। ज़रा दोबारा आपके रिवीजन के लिए चंद एक अहम जो हैं वो मज़ीद यहाँ डिस्कस किए गए हैं। अगर आपने कुछ इजाफे को शो करना हो किसी पैराग्राफ में तो इस तरह के अल्फाज जो हैं उनका सहारा लेते हैं। जैसे जुमले का आगाज़ अगेन से कर देते हैं, एंड दरमियान में डालते हैं, आल्सो को इस्तेमाल करते हैं, एज़ वेल को यूज़ करते हैं, बिसाइड्स, इक्वली इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा, थर्ड, फोर्थ वगैरह, फर्दर या फर्दर मोर का इस्तेमाल, इसी तरह इन एडिशन टू का इस्तेमाल, इन द फर्स्ट प्लेस, मोर ओवर, हाउएवर, नेक्स्ट, TOO जो होता है वो बी के मानी में, आल्सो का इस्तेमाल, एज़ वेल का इस्तेमाल, एज़ वेल एज़ का इस्तेमाल, एज़ सून एज़ का इस्तेमाल, इस तरह से जो कनेक्टिव्स हैं, आल्दो और येट का इस्तेमाल, तो वो हम करते चले जाते हैं। Dear students, then to give examples we use different words. मिसालें देने के लिए हम बहुत से जो है वो phrases और words का सहारा लेते हैं। जैसे for example, for instance, in fact, specially, specifically, that is,
टू इलस्ट्रेट, दस, सच एज वगैरह वगैरह। इसी तरह कंपेयर करने के लिए हम बहुत से अल्फाज का सहारा लेते हैं, जैसे इन द सेम मैनर, इन द सेम वे, आल्सो, एज वेल एज, लाइक वाइज, सिमिलरली जैसे एक बहुत आम पॉपुलर लफ्ज़ है कंपेयर करने के लिए। Dear students, then to show contrast in the sentences we use although and yet, but, although or but also, despite, even though, ये however का इस्तेमाल, nevertheless का इस्तेमाल, in contrast to का इस्तेमाल, in spite of आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, on the contrary ये contrast के लिए यूज़ होता है, on the other hand, still, though, instead of, अदरवाइज़, ये आम हमारी फ्रेजेस और अल्फाज हैं जो हम कंट्रास्ट के लिए जुमलों में यूज़ करते हैं। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम सिमिलैरिटी को शो करते हैं, जब हम कंट्रास्ट करते हैं तो वी पुट टू डिफरेंट अपोजिंग फोर्सेस, अपोजिंग सेंटेंसेस, अपोजिंग क्वालिटीज़ इन अ सेंटेंस। तो उसके लिए हमें फिर कंट्रेरी जैसे अल्फाज, अदरवाइज़ जैसे अल्फाज जो है वो हमारी बहुत मदद करते हैं। When we have to conclude a paragraph, we usually use certain words, जैसे बेटे as a result ये, या shortly, in short, all in all, in conclusion, in other words जैसे in summary या summarily, on the whole, that is, therefore, या अक्सर ये हम बहुत यूज़ करते हैं to sum up the discussion। दस के साथ बड़ा हम जुमले लिखते हैं, 10 इस तरह से। फाइनली ये वाले अल्फाज जो हैं हमें कंक्लूजन बनाने में मदद दे सकते हैं। देन देयर आर सर्टन वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट कैन कन्वे द सेंस ऑफ टाइम। अगर वक्त को शो करना हो तो बहुत से अल्फाज हैं हमारे पास, चंद एक यहाँ दिए गए हैं, जैसे आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, एज लॉन्ग एज सुन एज, एट लास्ट, सो फार, बिफोर, अगो, ये बड़े आम से अल्फाज हैं। इमीडिएटली, मीन वाइल, नेक्स्ट, सिंस, सब्सिक्वेंटली बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, देयर आफ्टर, अनटिल, वाइल, इवेंचुअली, व्हेन, देन जैसे हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये सारे अल्फाज जो हैं वक्त को शो करने वाले अल्फाज होते हैं। बेटे इसी तरह बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो प्लेस और डायरेक्शन को शो करते हैं, जैसे अबव ऑल, अबव अकेला, बिलो, बियॉन्ड, क्लोज, एल्सवेयर, फर्दर ऑन या फर्दर मोर जैसे यूज़ करते हैं, हेयर, देयर, नियर बाई, अपोजिट, टू द लेफ़्ट, टू द राइट, टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट। इस तरह से बहुत सी फ्रेज़ें हम बनाते हैं तो जो प्लेस और डायरेक्शन को शो करती हैं, टू द राइट, टू द लेफ़्ट, इस तरह की। Then there are certain other words which show relationship, logical relationship, जैसे accordingly का लफ्ज़ है, as a result of, because बहुत इस्तेमाल में आता है, as अकेला, consequently, for this, for that reason, hence, if, otherwise, since, then, therefore, thus। तो ये सारे जो हैं इंटर रिलेशनशिप को शो करने वाले अल्फाज होते हैं। Dear students, there is a very simple exercise for you people to complete. This exercise is based on the words we have just gone through as a transitional words that are called cohesive devices. ये cohesive devices बेटे आपने इस्तेमाल करके ये जो यहाँ blanks दिए गए हैं इनको आपने अब आपस में जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। देखिए जैसे एक आध मैं आपकी खातर इसे पढ़ देता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद जो है वो पढ़ें और पिछले दिए गए अल्फाज की मदद से इनको समझकर जो है वो खुद से कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। देखें जैसे पहला जुमला है बेटे, उसके शुरू ही में ब्लैंक है, ही और शी ईट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स। तो वो जो है वो खाती है सब्जियां, फ्रूट, ग्रेन्स और सीड्स। तो ये जो है वो आपने शुरू में अब इसके देखना है कि कौन सी जो है वो फ्रेज़, कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो इस जुमले को इम्फेटिक बना सकता है, मज़ीद क्लियर कर सकता है, लिंकेज फराहम कर सकता है। आगे देखें, दिस डाइट
consists of non-meat food sources. Vegetarian typically consumes less fat and cholesterol than an individual who consumes meat. Raising animals for food. तो ये बेटे सारा जो है वो एक पैराग्राफ है असल में जो वेजिटेरियन को डिफ़ाइन करता है। तो आपने जो है वो इसको समझकर जो है वो पूरे पैराग्राफ को पढ़कर पिछली जो आपकी डिवाइसेस हैं कोहेसिव डिवाइसेस उनमें से अल्फाज चुन के इसकी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट इज़ अप टू यू पीपल नाउ टू प्रैक्टिस दिस exercise for the sake of making yourself aware of how to use these different devices which are very very helpful to create meaningful sentences. Dear students, here is another exercise for you people to find out appropriate words from the cohesive devices we have just discussed in the previous section. तो बेटे ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये भी आपको खुद जो है वो इस तहरीर को अच्छी तरह पढ़ने के बाद इसके लिए जो ब्लैंक्स हैं वहाँ आपको मुनासिब जो है वो अपने अल्फाज और फ्रेजेस जो हैं वो इंसर्ट करना है। इट इज़ अप टू यू पीपल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज प्लीज़। Dear students, there is another exercise in a different style and with a different way to solve. The following groups of sentences can be rearranged to form a paragraph. Make a note of the order or sequence in which they should be placed, e.g. B, C, D, E, A वगैरह वगैरह, and encircle the letter that corresponds to what you think is the topic sentence. तो उसमें से आपने topic sentence भी ढूंढना है। Dear students, the paragraph has been given in this section and the exercise has been given before. आप बेटे इस पैराग्राफ को पढ़ें और जो पीछे हिदायत दी गई है उसके मुताबिक इसको अरेंज करें। बेहतर यह है कि लिख कर अरेंज करें या सिर्फ चलें नंबरों की सीक्वेंस के हिसाब से कि कौन सा जुमला जो है वो किस तरतीब से आएगा, ए पहले आएगा, बी आएगा कि ई आएगा कि क्या आएगा, और इसमें से कौन सा जो है जुमला ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा जो है वो ओपनिंग सेंटेंस है इस पैराग्राफ के हिसाब से। तो ये भी एक एक्सरसाइज है बेटे जो आपको खुद करना चाहिए, आपको ज़्यादा समझ आएगी। Dear students, there is another very good example and exercise for you people to complete. पहले इसकी हिदायत देखें बेटे, फिर उसके मुताबिक इसको समझ कर जो है एक पैराग्राफ की शक्ल दें इसको। Write a paragraph about smoking using the jumbled notes below following the order of the linking words. ये बेटे जिस तरतीब से ये दिया गया है ना, लिंकिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इस तरतीब के मुताबिक ये जुमले जो हैं वो आपके 6-7 जो हैं इनको आपने तरतीब देना है कि किस जुमले के सामने कौन सी ये फ्रेज़ फिट बैठती है। देखें जैसे 50 ईयर्स अगो, अब आपने अगली तरफ से जो है ये वो जुमला तलाश करना है जो कि 50 ईयर्स अगो को पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा हो और मफहूम जो है वो क्लियर हो जाएगी, यानी ओपनिंग सेंटेंस आपका बन जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने तरतीब लगानी है वाक़यात के एतबार से, डिटेल के एतबार से, और फिर 10 वाला जुमला जो है वो यकीनन कंक्लूजन वाला सेंटेंस है और आपने फिर उसमें से ढूंढना है कि अब कौन सा ऐसा जुमला है जो आपके पूरे पैराग्राफ को जो है कंक्लूड कर रहा है और समराइज़ कर रहा है। तो बेटे इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इसको अलग से लिखें, लिख कर जो है वो अपनी कॉपी पर इसको तैयार करें। ये याद करें ना, पुराना आपका वो काम है, 6ठी जमात में आप वो किया करते थे, एरो बनाया करते थे कि कौन सा जो है वो पहले कॉलम में लफ्ज़ जो है दूसरे कॉलम के किस हिस्से से जो है वो अटैच होगा, तो वो एरो बना के हम सॉल्व किया करते थे छोटी जमातों में। तो दिस इज़ द सेम एक्सरसाइज, द सेम पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज, बट इट इज़ श्योरली ए गुड रीडिंग फॉर यू पीपल। आपको बहुत इससे मदद मिलेगी और महमीज़ होगा आपका जहन भी इमेजिनेशन के हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। Dear students, this section of our discussion presents a brief summary of the whole of
our session today to memorize and learn the main points. Therefore, go through it yourself, write them down to make it a good reading and writing practice for your future examination needs. Dear students, thank you very much for participating in this session. See you soon, inshallah, in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.